हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। पिछले 2 साल से आपने देखा होगा, जब से कोविड-19 आया है दुनिया में काफ़ी सारी तबाही मचा चुका है। सब लोग परेशान हैं, काफ़ी सारे फैमिलीज परेशान हैं। लेकिन बात यह है कि जिनकी फैमिली ही नहीं है वो कितने मजबूर होंगे, परेशान होंगे, ये सोचने वाली बात है। फिर भी अल्लाह ताला जो बंदों को बनाता है, कुछ अपने नेक बंदे होते हैं जिनसे हुकूकुल इबाद का भी काम लेता है। ऐसे ही हमारे साथ एक नौजवान लोग यहाँ पे खड़े हैं जो समर्थन फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज उन्होंने बेंगलुरु के केजीहल्ली एरिया में एक ओल्ड एज होम खोला है, जिसमें पर्टिकुलरली औरतों के लिए और बच्चों के लिए इन्होंने एक नेक काम जो यहाँ पे स्टार्ट किया है। जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन रहते हैं उनके लिए यहाँ पे रहने का, खाने खर्च की सहूलत का उन्होंने इंतज़ाम किया। आइए इस नौजवान टीम से हम बात करते हैं। मिस्टर उस्मान, सबसे पहले बेंगलुरु अखबार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना नेक काम आप कर रहे हो इसे कोविड के टाइम में। आप अपनी संस्था के बारे में और इस ओल्ड एज के बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। सो दिस इज़ आवर एनजीओ। हमें जनवरी में 15 तारीख को एक छोटे इंस्टाग्राम पेज के जैसा शुरू करे, समर्थन एनजीओ को बोल के। हमारा इरादा ये था कि जो बच्चे ड्रग्स में इसमें ही उनको निकाल के बाहर उनको काउंसिल करेंगे करके, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ओल्ड एज होम विज़िट्स करना शुरू करें, फिर आगे और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसा काम करते करते फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों के घर जाना, उनके ज़रूरत पूरे करना, फिर गरीब बच्चों से जाके मिलना, स्पेशली जो स्लम्स में भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके पास गए, उनको दूध और जो भी न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत थी उनको पहुंचाए। And we were just a team of 10 when we started. Initially we were 3, then 10, now we are almost 40. Achha, are you the same group who started this milk distribution? No, they are our partners. They are your partners. Yeah, so we begin like that. So first we started with food distribution, then ration distribution. In the month of Ramzan, we almost covered 500 families. So after that, until now, we have covered up to 1,800 families with the ration kits. And then we finished the milk distributions. Then daily we were distributing food and everything. Then we distributed educational kits. That is stationary kits to the children who are not going to school, who are not doing anything, especially to the beggars who are holding a slum in Nagwara and Outer Ring Road, everywhere. So we have been constantly in touch with them. We scheduled a child welfare event as well. And now we suddenly planned up and we thought, why not opening a old age home, a shelter home for people. So there are many women who are divorced, who are not married, unmarried, old, who do not have a family. For them we started this and we begin with this, and alhamdulillah we have begun with our own personal fundings, with our friends and family, not any sponsors. So we are hoping for people to come forward and help us, and inshallah follow us on Instagram, keep supporting us, and inshallah we will try grow and together. क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे औरतें और बच्चे आपने कहा है? जी, तो फैसिलिटीज़ वी आर गोना प्रोवाइड देम एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज़ नो फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई पैसे आप नहीं चार्ज करेंगे? कोई पैसे नहीं. सो इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज़ देयर ओन होम एंड वी आर देयर फैमिली. So there is no costing, nothing. We'll provide them 24/7 food facility, shelter, everything, medical aid, financial aid. This is their home. It is not our home, it's their home. It is a shelter for all the homeless people. Okay. I heard you are also co-founder of this organization. If I talk about women empowerment, how important do you think that women should take part in this kind of activities in today's society, 21st century? Okay, I definitely think that when we talk about women empowerment, everybody is equal. So जब equality की बात करते हैं, there is no छोटा या बड़ा या male या female. Even if when we talk about financial or physical help, तो both the stuff women have to come forward. अब आजकल तो ऐसा नहीं है कि घर में रोकरी कर रही हैं. Even if they do, then we can help like from outer source as well, because घर में बैठे बैठे भी काम हो रहा है, through phone भी हो रहा है. तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है एड अप होती है हमारे जो भी वैल्यूज़ एड अप हो रही, बाद में हम ना उसकी मिलती है हम ना द फ्रूट एंड द सक्सेस. तो या वी हैव बिन डूइंग दिस फॉर द एनजीओ एंड बूंद बूंद से दरिया होता है. तो अब ओल्ड एज होम में सिर्फ या 1 या 2 लोग मिलकर ही अब वी विल फुल फ्लेज कॉन्सेंट्रेट टू हेल्प देम प्रोवाइड विद ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ जैसा हमारे घर में होता है उनको करना चाहती हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द आउटर सोर्स एज वेल, अगर शायद मिली तो इंशाल्लाह, तो वी विल एक्सपैंड दिस ऑन अ लार्जर स्केल. सो या इतनी छोटी कम उम्र के नौजवान हो आप लोग, इतना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो, आप भी एक औरत हो.
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एजुकेशन फॉर विमेन? औरतों के लिए इल्म का हासिल करना कितनी ज़रूरत है? I think education is the main key to success. It's not only about success, it's about life. Education is total life. I think every girl child needs education. मैम, अभी बहन कह रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वीमेन के लिए क्या है। ऐसे जो संस्थाएं बनते हैं, ओल्ड एज हम बनते हैं, क्या आपको लगता है अगर विमेन एम्पावरमेंट हो, अगर वुमेन को एजुकेशन पहले से दिया जाए, बचपन से दिया जाए, तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं आती? सही बात है, पहले से ही जब वी हैव टू सपोर्ट पुअर पीपल हु आर पुअर, वी हैव टू सपोर्ट देम एंड बचपन से ही बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्फनेजेस भी people should come forward and open these kind of organizations. अभी जो आप ये संस्था चला रहे हो, इसका कोई एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेस है आपके लिए? कोई सपोर्ट है, कोई CSR फंड्स हो या कोई गवर्नमेंट का फंड्स हो या कुछ है आपके लिए सपोर्ट? सर हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, ना CSR, ना कॉरपोरेट, ना ही कोई एक्सटर्नल फंडिंग, ना कुछ। वी आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ आवर ओन मनी। दे आर पीपल हु आर स्टूडेंट्स हियर हु आर रीचिंग आउट टू देयर फ्रेंड्स, दोस्तों के पास से डोनेशन ले रही, फैमिलीज़ रिश्तेदारों के पास से ले रही। जिन्होंने IT सेक्टर में काम कर ले कोई, उन्होंने अपने सैलरीज से मंथली 1500 कर को डोनेट करे, तो वो सारा कलेक्ट करके हमें अपने ट्रस्ट अकाउंट से ये इदारा चला रही। तो कोई अब तक हम ना फाइनेंस के लिए आगे नहीं आ कोई। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि अगर कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस हम ना आया तो इंशाल्लाह और एक्सपैंड करेंगे और यूथ को जमा को हमें आगे बढ़ेंगे वो। आई थिंक द बेस्ट पार्ट हम लोगों के लिए कि हम लोग यंगस्टर्स हैं और एट दिस एज ट्राइंग टू डू समथिंग इतना डिफरेंट ताकि हम लोग दूसरे लोगों को हेल्प करें। आजकल की जनरेशन दूसरों के बारे में नहीं सोचती, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो द फैक्ट कि हम लोग दूसरों के बारे में वो एहसास है अपने दिल के अंदर कि कुछ करना है, हेल्प करना है लोगों को, तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो चीज़ से दूसरे लोग जो आ रहे हैं, अदर यूथ ज्वाइन इन करना चाहते हैं, मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आने लगे हैं ये देख के ही। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी बात है, और वो जज्बा जो पैशन से कर रहे हैं उस चीज़ से सब चीज़ अच्छा होएगा। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका पोता और इनकी पूरी टीम जो ये नेक काम कर रहे हैं, तो पोता है, वो तो नवासी है। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? पंडाल है, फंक्शन है, क्या हो रहा है? क्यों आए आप यहाँ पे? फंक्शन है, बच्चा क्या हो, गरीबों की मदद करना, ओल्ड एज होम खोलना, उसके वास्ते आए। आप इनको कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये छोटी उम्र में इतनी अच्छी तरबियत करी, नौजवान ही जो ये औरतों के लिए खोल रही है, तो आपके जज्बात का क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह हमारे जहाँ तक कोशिश है, अल्लाह बच्चों को कामयाबी दें दे, और ये घर में आए उनको भी कामयाबी दें दे, अल्लाह सेहतमंद दें दे। जो भी यहाँ पे आके रहते हैं ना आंटी, वो बहुत मजबूर औरतें रहती। अब उनकी उम्र 15 साल की रहो या 80 साल की रहो, बहुत तकलीफ होती है, उनका कोई फैमिली नहीं रहता। हमारे घर अल्लाह उनके रसूल हैं, उसके बाद बच्चे हैं जी, मदद करना, अल्लाह उनके हाथ में उनका रिस्क दिया है, अल्लाह उनकी मदद करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है समर्थन, जिसके अंडर में इन्होंने एक ओल्ड एज होम को ओपन किया है, जिसमें औरतों के लिए, बच्चों के लिए रहने का, खाने पीने का फ्री में इंतज़ाम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ऑर्गेनाइज करने वालों के चेहरों को आप देख सकते हैं, इनकी उम्र को आप देख सकते हैं। ये उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ ही उन डिस्ट्रेस औरतों के बारे में सोचा है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता होगा, जब हमने बेंगलुरु अखबार हमने स्टार्ट किया, तो अगर आप हमारे अबाउट कॉलम में आप जाके देखेंगे तो हमने यही चीज़ को मेंशन किया, ऐसी चीज़ों को आप तक पहुंचाना, आपकी मदद तक इन तक पहुंचाना, ताकि गरीब लोगों की मदद हो, मकसद पूरा हो, सबके लिए अल्लाह का अजर हो। इस मकसद से हमने इसका चैनल को स्टार्ट किया था। ऐसे लड़कों की, लड़कियों की हम सबको मदद करना चाहिए। स्क्रीन्स पे हम इस ऑर्गेनाइजेशन के फ़ोन नंबर्स, डिटेल्स सारे मेंशन करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने की ख्वाहिश पैदा होती है, एक एक लेडी, एक औरत या माँ समझ के अडॉप्ट करें, या बेटी समझ के अडॉप्ट करें, या बहन समझ के अडॉप्ट करें, उनके लिए आप कुछ भी ताउन करना चाहते हैं अपने घर वालों की तरफ से, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इन तक पहुंचाएंगे। आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर कहीं भी हो, हम इनके फ़ोन नंबर्स आपको डिस्प्ले करेंगे। इन सब की मदद कीजिए। बकिया ख़बरों के लिए आप देखते रहिए बेंगलुरु अखबार। इस यंग टीम के साथ मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।